So this is the second part of the book review, What is History? It is written by E.H. Carr. In the first part, we have reviewed the book's first 3 chapters, and today we will talk about the last 3 chapters. It is about causation in history, in which Carr talks about the study of history as the study of causes. He argues that historian must ask the question, why? For example, while it is essential to know that World War I started in 1914, the question for historians should be why only in 1914? One of the critical historians whom E.H. Carr talked about was Montesquieu, who wrote in his work Considerations on the Causes of the Greatness of the Romans and Their Rise and Decline. However, later in the 19th, 20th century, historians started focusing on explanation and interpretation and rejected the causal approach of why it happened and shifted to a more functional approach of how things happened. So Carr says historians generally assign causes to events. He can assign several events to certain events. मित्र ने एक्सप्लेन किया यहाँ पे कॉजल इवेंट्स की बात करते हैं और अकॉर्डिंग टू एच कार हिस्ट्री का काम केवल एक्सप्लेन करना नहीं है। हिस्ट्री का काम ये है कि जो भी इवेंट पास्ट में हो चुके हैं और जो कुछ भी घट रहा होता है उसके पीछे एक स्पेसिफिक रीजन होता है, स्पेसिफिक कारण होता है और उस कारण को पता करने के लिए हमें एक क्वेश्चन पूछना होता है वाई। और जब हम वाई क्वेश्चन पूछते हैं तो हमें जो भी इवेंट्स होता है वो क्यों होता है, क्या क्या उसके रीजंस हैं, हमें ये पता चलता है। जैसे वो वर्ल्ड वॉर का एग्जांपल देते हैं और ये बताते हैं कि जो वर्ल्ड वॉर हुआ, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, वो 1940 से 1939 के करीब ही क्यों हुआ। जब हम ये सवाल पूछते हैं तो बहुत सारी कहानियां, बहुत सारे फैक्ट अनफोल्ड होते हैं। एंड दैट इज वाई कॉजल एक्सप्लेनेशन जो है और कॉजल चीजें हिस्ट्री के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। Historians generally assign causes to event. He can assign several causes to the same events. Furthermore, secondly, he reduces them to a hierarchy of causes to conclude which cause has the final say or which is the ultimate cause of an event. Then he deals with the question of ultimate causation. He talks about 2 ultimate causes in history, namely determinism in history or the wickedness of Hegel, and the other chance in history or Cleopatra's nose. The first one is linked to Karl Popper's book, The Open Society and Its Enemies, and the Poverty of Historicism, in which Karl Popper was targeting the determinism of Hegel, Marx, and Plato by calling them historicists. In 1954, Isaiah Berlin also attacked Marx and Hegel in his essay Historical Inevitability. Berlin said that Hegel and Marx tried to explain human actions in causal terms and denied humans free will and capacity to influence events. It also ignored the scope of accidents in history. So E.H. Carr also critically analyzes determinism, which means everything has a defined cause or multiple causes. But he argues that the criticism of Hegel and Marx was inappropriate because all human actions are free and determined according to the point of view of which one considers them. It is the function of historian to investigate the causes, and historian sometimes says that event was inevitable and was bound to happen. But it means that the possibility of its occurrence was high. It doesn't mean that the historian was predicting something. Historians do not always say before the event took place that it was bound to happen. Rather, they look for alternative option available to a person in that given circumstances and explain why a person chose one option and not the other one. Also, we can always say that things would have been different if that person or the other was a leader instead of the other one. But this is not determinism, because determinism would always say that for आगे ये अजकार कॉल पॉपर और इजाया बर्लिन का एग्जांपल देते हुए ये कहते हैं कि कई सारी हिस्टोरिकल राइटिंग्स हैं जैसे कार्ल मार्क्स एंड हेगल, स्पेशली जो कार्ल पॉपर की बुक है ओपन सोसाइटी इन इट्स एनिमीज, वहाँ पे वो जो एक्सप्लेनेटरी नेचर ऑफ हिस्ट्री है उसको क्रिटिसाइज करते हैं। जैसा कि जब आप कार्ल मार्क्स का जो डायलेक्टिक मटेरियलिज्म है, जहाँ पे वो पूरी की पूरी हिस्ट्री को डिटरमाइन करने के लिए केवल एक फैक्टर कार्ल मार्क्स बताता है, वो मटेरियलिज्म, और वो एक जो डायलेक्टिक फॉर्म में चल रहा होता है जिसमें थीसिस एंटीथीसिस एंड सिंथेसिस एंड से मिगल है। बट इन दोनों में जो बेसिक डिफरेंस है, हिगल के लिए आइडिया प्राइमरी है, मार्क्स के लिए मैटर प्राइमरी है। और कार्ल पॉपर केवल इन्हीं दोनों को नहीं, और एक और थिंकर है प्लेटो, उसको भी वो क्रिटिसाइज करता है। क्योंकि इन तीनों के साथ जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है अकॉर्डिंग टू कार्ल पॉपर और इजाया बर्लिन ऑल्सो, कि ये मान के चलते हैं। पहली बात तो ये, सबसे पहले किसी एक पर्टिकुलर इवेंट को, किसी एक पर्टिकुलर फैक्टर को हिस्ट्री को डिटरमाइन करने में इंपॉर्टेंट रोल मानते हैं। जैसा कि मैंने बताया, मार्क्स के लिए मैटर सब कुछ था जो हिस्ट्री के लिए इंपॉर्टेंट है, हेगल के लिए आइडिया सब कुछ था जो हिस्ट्री के लिए इंपॉर्टेंट है। सो कार्ल पॉपर बोलता है कि इनमें एक एक्सप्लेनेटरी स्वभाव है जो काम हिस्टोरियंस का नहीं है।
हिस्टोरियंस केवल चीजों को एक्सप्लेन करें और ऑन द बेसिस ऑफ सम फैक्ट अगर वो प्रिडिक्शन कर रहे हैं तो वो हिस्टोरियन का काम नहीं है। प्रिडिक्शन का काम हिस्टोरियन नहीं करते, वो पास्ट इवेंट्स में जाते हैं, कुछ पर्टिकुलर फैक्ट के बेसिस पे उस पास्ट इवेंट को एनालाइज करने की कोशिश करते हैं। और इसीलिए हिस्टोरियंस और जो एक्सप्लेनेटरी नेचर ऑफ हिस्ट्री है, इन दोनों के बीच में आप एक डिफरेंस कार्ल पॉपर करते हैं, सॉरी यशकार करते हैं अपनी बुक व्हाट इज हिस्ट्री में। बोलते हैं इन दोनों में डिफरेंट है, दो अलग अलग तरीके हैं हिस्ट्री को देखने के। Regarding the inevitability of the ideas, he argues that historians do not say before the event took place that it was bound to happen. Rather, they look for alternative options available to a person in that given circumstances and explain why a person choose one option and not the other. Also, we can always say that things would have been different if that person was a leader instead of the other one. But this is no determinism, because determinism would always say that for a thing to happen differently, you need to have different causes. Problem, according to Carr, is that people always try to remember the time when all the options were available in front of a historical figure. For example, like the decision to partition India. But people today are finding it difficult to adopt the attitude of a historian. This is purely an unhistorical reaction. We need to accept the reality as it is. तो कार्ल पॉपर ये बोलते हैं कि कई बार जब हम हिस्टोरिकल इवेंट्स को देखते हैं तो उसको एक्सप्लेन करते हुए कई बार हम अननेसेसरी चीजें एक्सप्लेन करने लगते हैं। जैसे वो एक एग्जांपल, आप एक एग्जांपल के थ्रू समझिए। जैसे इंडिया का पार्टीशन हुआ, तो इंडिया के पार्टीशन के कुछ जब आप पार्टीशन के रीजन ढूंढते हैं तो कुछ इवेंट्स ऐसे हैं या फिर कुछ फैक्ट ऐसे हैं जो आपको प्रोवाइड हो जाते हैं। बट कई बार जब फैक्चुअल चीजें नहीं होती बट फिर भी आप एक एनालॉजी ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ योर लॉजिकल रीजनिंग, जो उस चीज को एक्सप्लेनेटरी ज्यादा बना देता है विदाउट हैविंग फैक्ट। तो वो इस चीज से बचने के लिए बोलते हैं, वो बोलते हैं इवेंट जिस तरह से घटित है उसको उसी तरह से एक्सप्लेन किया जाए, रेदर देन इवेंट को जानबूझ के स्ट्रेच करके उसे कुछ और बनाने की कोशिश की जाए। So he gave a very strong advice to those people who try to situate an event by giving a particular cause to that. So, for example, he analyzes the Cleopatra nose example. The crux of Cleopatra's nose is that history is the result of accident and coincidences. For example, Battle of Actium was decided by Antony's infatuation with Cleopatra. We often establish a relationship between female beauty and male infatuation. They are often called accidents in history. So he argued that some people exaggerate the role of accidents in history, and to describe something as a mischance is wrong. And we do it because we do not want to investigate its causes. सो आगे यशकार ये कहते हैं कि कई बार हिस्ट्री राइटिंग की प्रॉब्लम ये भी है कि कुछ इवेंट्स पे कुछ इवेंट्स घटा और उस इवेंट को हम इतना ज्यादा प्रेज कर देते हैं, कुछ इवेंट्स को हम इतना ज्यादा उस पर इतना ज्यादा इम्फेसाइज कर देते हैं कि और जो इम्पोर्टेंट फैक्टर्स हैं सो वो कहीं ना कहीं दब जाते हैं। और ऐसा इसलिए होता है, वो आगे बताते हैं, क्योंकि हिस्टोरियंस दे डू नॉट वांट टू इन्वेस्टिगेट, वो इन्वेस्टिगेट नहीं करना चाहते किसी एक पर्टिकुलर। This is where his differentiation between accidental and real causes become important. So historian always try to order the causes behind an event hierarchically. A historian cannot embrace the whole of experience or cannot try to understand the whole experience. Just like he selectively chooses some facts, he hierarchically organizes the causes. Historian looks into the experience of the past event from the sources or the limited sources that are accessible to him, and only that part which he can rationally explain and draw conclusions from. So history is a process of selection in terms of historical significance. There can be n number of causes of an event, but a historian chooses what he wants to believe in as historically significant and rationally explainable. Other sequences that comes in front. As opposed to accidental causes, we have rational causes that can bring generalization. For example, peasant protest in USSR led to the crisis, and it is possible that it can occur in a country with a similar economic model. But accidental causes, like the sudden death of Lenin, cannot be generalized to other areas, and we can. So history must contribute in our understanding of past in the light of present, and of present in the light of past. History is also about handling down of tradition. Tradition means carrying the lessons of
जैसा कि हम पहले चैप्टर में हमने जब हिस्ट्री को डिफाइन किया था, तो हम उसमें पुलकित ने जब एक डिफिनीशन बताया था हिस्ट्री का, और वो बता रहा था कि हिस्ट्री जो है पास्ट और इन प्रेजेंट के बीच में एक इंटरेक्शन, हिस्टोरियंस और फैक्ट के बीच में एक इंटरेक्शन है। तो फोर्थ चैप्टर में यचकार इसी को और ज्यादा वेरीफाई करते हैं, और ज्यादा इसको इस तरफ उनकी रीजनिंग देखने को मिलती है। और ये बोलते हैं कि जैसे लेनिन का एग्जांपल, लेनिन की डेथ हुई तो कई लोगों ने जो भी उसके बाद सोवियत यूनियन का जो भी जिस तरफ भी सोवियत यूनियन गया उसका उसको पूरा का पूरा लेनिन के डेथ से वो कनेक्ट करते हैं। सो वो बोलते हैं कि इससे हम हिस्टोरियंस को सीख नहीं मिलती, इससे इससे कुछ होने वाला नहीं है कि आप लेनिन के डेथ को ही सबसे बड़ा रीजन बना दें। और इससे वो बचने की बात करते हैं, और बोलते हैं कि हिस्ट्री जो है वो जो कुछ कोई भी हिस्ट्री जो पास्ट इवेंट जो है वो प्रेजेंट सेल्फ के अकॉर्डिंग देखी जानी चाहिए, और प्रेजेंट और पास्ट का एक इंटरेक्शन दिखनी चाहिए हिस्ट्री में। दैट इज व्हाट ही इज ट्राइंग टू से इन फोर्थ With history as चैप्टर। progress. So he begins with the example of John Acton, who in 1896 called history as a progressive science. It means history is a progress toward the goal of perfection of man state on earth. For example, when we see 18th and 19th century industrialization, we call it as a progress from past. Similarly, countries like India may call the period of 20th century at the end of colonialism as a progress, and colonizers like British would say that it is a decline of British power on earth. So the idea of progress came from Darwin. But there arises another confusion between biological inheritance and social acquisition, and it tries to differentiate between the two. In terms of biological inheritance, if we see, no major change has occurred over the past few years, but we can measure and differentiate generation. Secondly, Carr says the progress do not have any finite beginning or end. There is no definite beginning or definite end. You remember Francis Fukuyama famously said, end of history. But is there any end of history or victory of liberalism? Carr also talks about Acton's argument that history is the course of events and also a record of those events. It is progressive in this sense. History is progress toward liberty, for example, as Acton says, and progress toward the understanding of liberty. So, for a historian, end of progress is not already evolved or which has already happened, rather, it is still infinite. For a historian, end of progress is not already evolved or which has already happened. Rather, it is still infinite and we can only find pointers toward it as we advance. Also, there is no such straight line progress in history. There can be n number of stoppages, reverses, and sometimes deviation. So, in history, while there are phases of progress, there are also phases of deviation and decline. Also, if one thing has played a crucial role in advancement of civilization in one particular period, it is possible that that thing will not play a role at all other period like state, religion, class, civilization, etc. Because that particular system will be too involved in that existing tradition that it can change that thing. Also, progress doesn't mean progress for all. Some sections may face decline in one period while others will prosper. So EHK says that many who say that progress is dead belong to that class of society that तो जॉन एक्टन वो हिस्ट्री एज ए प्रोग्रेस की तरह देखते हैं, और ये मानते हैं कि हिस्ट्री जो है वो कहीं ना कहीं एक प्रोग्रेस का प्रतीक है। हिस्ट्री में प्रोग्रेस को ज़्यादा इंपॉर्टेंट दिया जाता है, और फिर वो प्रोग्रेस को कहीं ना कहीं लिबर्टी को उसका अल्टीमेट एंड मानते हैं कि जितना लिबर्टी एक्सपेंड होगी, जितना लिबर्टी का एक्सपेंशन होगा, हिस्ट्री उतना ही ज़्यादा इवॉल्व करेगी। एंड दैट इज हाउ ही हैज सीन एंड ही हैज लुक एट द हिस्ट्री। बट उनके साथ प्रॉब्लम ये शिकार बोलते हैं ये है कि हिस्ट्री जो है कि स्ट्रेट लाइन की तरह नहीं है। हिस्ट्री एक लीनियर वे में नहीं चलती, और उसका कोई स्टार्टिंग और उसका कोई एंडिंग पॉइंट नहीं है। हिस्ट्री एक, आप ये कह सकते हैं, हिस्ट्री एक कंटिन्यूअस कंटिन्यूअस प्रोसेस है। और ऐसा नहीं है कंटिन्यूअस प्रोसेस है तो उसकी कोई बिगिनिंग लाइन है या फिर उसका कोई एंड लाइन है। सो अगर इस तरह के कंसेप्शन को वो खारिज करते हैं जॉन एक्टन के, एज वेल एज एक आप जैसा कि मार्क्स एंड हिगल का हिस्ट्री राइटिंग से जहाँ पे वो डायलेक्टिक चीजों की बात करते हैं, हिस्ट्री जो है एक एक द्वंद की तरह चलती है, एक एक डायलेक्टिक फॉर्म में चलती है। तो वो मानते हैं कि जो भी हिस्टोरियंस हिस्ट्री को इस तरह से एक पर्टिकुलर एलिमेंट पकड़ के हिस्ट्री को डिटरमाइन करने की कोशिश करते हैं, बताने की कोशिश करते हैं कि हिस्ट्री का अल्टीमेट पर्पस क्या है, एक्चुअली दे आर लिविंग इन द रॉन्ग परसेप्शन। क्योंकि हिस्ट्री का काम ये नहीं है कि वो एक एलिमेंट्स को पकड़े और उसके बेसिस पे हिस्ट्री राइटिंग आप स्टार्ट करें। हिस्ट्री का काम ये नहीं है। हिस्ट्री का काम ये है
कि वो इवेंट्स को कंप्लीटली एनालाइज करे, कंप्लीटली देखे उसके रीजंस क्या है, उसके कॉजल एक्सप्लेनेशन क्या है, फैक्ट क्या है उन कॉजल एक्सप्लेनेशन के, एंड देन वो इन्वेस्टिगेट करने की कोशिश करे। और उस इन्वेस्टिगेशन में जो रेशनैलिटी के थ्रू जो जनरल कंक्लूजन आता है उसको वो यशकार हिस्ट्री का एक अभिन्न हिस्सा बोलते हैं। Progress. But how should a historian understand progress? Poses a very significant question. Like, do you really think that all the freedom fighters or the revolutionaries around the world were actually fighting in their respective countries and time because they want to get registered in their history books? So they are not consciously trying to do so or bring progress. Rather, it is the historian that attach importance to their actions and applies the logic of progress. So progress is not an empty concept. It is also a value-laden entity. So here Carr accepted Berlin's understanding of progress. Carr said, unlike nature, progress in history is about transmission of acquired assets that include both material possessions and capacity to master one's own environment. He also said that as we have evolved, we have not lost sight of social organization or our will to organize society in a better way. Rather, our capacities have increased and moral qualities have not declined. Rather, with so much upheavals happening around us, we have put a strain on these capacities. Currently, progress in history has not ended. This is not the peak of progress, as many scholars will say. Progress actually means progressive development of human potentialities. जैसे आप एक एग्जाम्पल के थ्रू समझिए, जैसे महात्मा गांधी हुए, ठीक है, जवाहरलाल नेहरू, और किसी भी फ्रीडम फाइटर को आप एक एग्जाम्पल के तौर पे लीजिए, हो सकता है तब ज्यादा समझ में आए। सो कई बार ये होता है कि हम महात्मा गांधी को प्रोग्रेस से लिंक कर देंगे कि वो इंडिया को प्रोग्रेस कंट्री के रूप में देखना चाहते थे, दैट इज वाई ही फॉट अगेंस्ट ब्रिटिश। सो एज ए जवाहरलाल नेहरू, ऐसे कोई भी भगत सिंह, कोई भी फ्रीडम फाइटर आप उठा लें, सो वो बोलते हैं कि ये काम, जब वो लीडर उस समय अपने कॉन्टेक्स्ट को जी रहा होता है, अपनी इन्वायरमेंट को जी रहा होता है, तो वो ये काम इसलिए नहीं कर रहा होता है कि उसे हिस्ट्री टेक्स्ट का एक हिस्सा बनना है, उसे हिस्टोरिकल इवेंट्स का एक पार्ट बनना है। वो एक्चुअल में ये काम हिस्टोरियंस करते हैं और उसके किसी एक चीज को उठाते हैं, कोई भी एक एस्पेक्ट उसकी लाइफ का, उसके इवेंट्स का उठाते हैं, और फिर उसे जो आइडियाज पहले से ही समाज में मौजूद है, जैसे प्रोग्रेस का जो भी आइडिया है, उस साँचे में उन्हें परखते हैं। अगर उन साँचों में अगर थोड़ा सा भी एलिमेंट प्रोग्रेस की तरफ गांधी को या फिर नेहरू को ले जाता है, तो उन्हें हम प्रोग्रेसिव बोल देते हैं। सो ये प्रोग्रेसिव किसी को कहना किसी को ना कहना, हिस्ट्री प्रोग्रेस कर रही या नहीं कर रही, एक्चुअल में ये उन लीडर्स के हाथ में नहीं है जो अपने कॉन्टेक्स्ट को जी रहे हैं, वो उनके हाथ में है जो हिस्टोरियंस है। हिस्टोरियंस पे कंप्लीटली रिलाई करता है और वो प्रोग्रेस को किस तरह से उनमें ढूंढने या प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। Therefore, there is nothing called absolute truth. An historian should distinguish between accidental and significant fact. The only absolute for a historian is change, and change is always there. Absolute in history is always relative, and it is still incomplete and in process of becoming. It is always something in futures toward which we move and gradually shape our interpretation of past. Our understanding of past are subject to change as we evolve. So, Carr believed for a historian to become objective, two things should be there. Firstly, he should have the capacity to think beyond his own situation in society and history. Secondly, his capacity to project his vision into the future to get a better understanding of past. One need to have a long-term vision over past and future. So history is not a dialogue between past and present only. Instead, it is a dialogue between events of past and progressively emerging future trends. For example, if we continue to see constitutional liberties and political rights as the ultimate goal of our present society, the historian will also interpret the past in constitutional and political terms and our future goals. Similarly, when social and economic rights become important, they will replace the constitutional and political goal. So, historian also will try to interpret past in So he said that historiography is a progressive science as it seeks to provide constantly expanding and deepening insights into events which are also progressive. This is, he called, constructive outlook
Another thing that EHR says is that history is not just about winner. A historian must not underestimate the opposition. Wars are not just touch and go event or as a simple walkover over the opposition. And sometimes those who are defeated has made more एक्सपीरियंस है। और ऐसी हिस्ट्री राइटिंग, हिस्टोग्राफी इस तरह से भी की गई है जहाँ पे जो भी विजेता है, जैसे जो भी विनर्स हैं, ज्यादातर जो शुरुआती हिस्ट्री है वो विनर्स की हिस्ट्री ज्यादा है। जैसे सिकंदर किन किन को हरा, एक एग्जांपल के तौर पे अलेक्जेंडर किन कौन कौन सा युद्ध जीता। तो एक हिस्टोरियंस का एक सेक्शन ऐसा है कि जो पूरे के पूरा हिस्ट्री राइटिंग इस तरह से करता है कि विनर्स युद्ध कितने कौन से किस जगह पे जीते, इस तरह से इतिहास लिखता है। जहाँ पे ये अजकार वो इस तरह के नोशन जो हिस्ट्री के हैं उनसे डिसएग्री करते हैं और ये बोलते हैं कि कई बार जो जो युद्ध नहीं जीतते उनका भी बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन हिस्ट्री में होता है। जैसे आप एक एग्जांपल लें, वर्ल्ड वॉर के बाद जो जर्मनी है, उसके बाद जो जर्मन लोगों में जो फीलिंग आई, जो ज्यूस माइग्रेट की और जो पूरी की पूरी एक त्रासदी एक ट्रेजेडी हुई, तो उसमें उस समय एक उसके 20-25 साल बाद एक किताब आती है लर्निंग फ्रॉम द जर्मन, सुजन न्यूमैन की एक किताब है जहाँ पे वो ये बताती हैं उस किताब में कि उसके बाद जर्मनी ने जहाँ पे होलोकॉस्ट हुआ उसको सहेज के रखा। और जो भी जैसे आप इंडिया गेट के तर्ज पे वहां पे अब जर्मनी में भी गेट बनाए गए हैं, बहुत सारे ऐसे गेट बनाए गए हैं। और उन गेट पे कभी भी हिटलर को विजेता के तौर पे नहीं दिखाया गया। उन 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 गेट पे उनका नाम और उनको इंगित किया गया जो भी होलोकॉस्ट में मारे गए, ताकि ताकि लोगों के जहन में ये हो, उन्होंने जो सेक्रीफाइस दिया, ठीक है, और उनको जिस रीजन से भी मारा गया, एक बार जब उस गेट को देखें तो उनमें एक ऐसी चेतना है, एक हिस्टोरिकल कॉन्शियसनेस है जहाँ पे उन्हें ये पता चले कि हिस्ट्री में इनकी इंपॉर्टेंस ज्यादा है रेदर देन हिटलर जैसे लोगों की। सो यही सेम बात मार्क्स बोलता है 18वीं सदी में कि वो पहला हिस्टोरियंस है जो पहला हिस्ट्री राइटिंग इस तरह से करता है, वो चैलेंज करता है हिस्ट्री के पूरे नोशंस को, और वो पूरा का पूरा एक क्रिटिकल हिस्ट्री लिखना स्टार्ट करता है। और जो भी इस्टेब्लिश एपिस्टेमोलॉजी हो उसको क्रिटिसाइज करता है, और वो शोषितों का इतिहास लिखता है कार्ल मार्क्स, जिसकी वजह से इतिहास लेखन की एक नई न्यू ट्रेंड और नया ट्रेडिशन चालू होता है। और इसका एग्जैक्ट सेम चीज बोलते हैं कि कई बार जो विक्टर्स हैं उनकी हिस्ट्री की बजाय वो लोग भी कंट्रीब्यूट करते हैं जो हमेशा से मार्जिनलाइज होते हैं, या फिर जो युद्ध हार जाते हैं, या फिर उनको 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 कोई इंपॉर्टेंट फैक्टर के रूप में हिस्टोरियंस नहीं देखते, जबकि उनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है हिस्ट्री को सेव करवाने में। That's why Carr said that we should not create some abstract standard to judge the past, because what we today see as a failure might turn out to be achievement of tomorrow. Objectivity in history doesn't talk about immovable standard of judgment that exists. Instead, it rests on standard which is laid up in the future and evolved as the course of history advances. So history can acquire objectivity by establishing a link between past and future. So he concludes in the second chapter that the society that has lost faith in its capacity to progress in future will not care about the progress in the past. Our view of history reflects our view of society. यशकार इसमें कहीं ना कहीं जो हमने ऑब्जेक्टिविटी और सब्जेक्टिविटी का एक डिबेट सोशल साइंसेज में बहुत बड़ा डिबेट है कि हिस्ट्री राइटिंग में ऑब्जेक्टिविटी कैसे है। तो यशकार के अकॉर्डिंग इसका जवाब उनका ये है कि जो वो चेंज है फ्रॉम पास्ट टू प्रेजेंट, जो वो ट्रांसफॉर्मेशन है, वही ऑब्जेक्टिविटी है। जब हिस्ट्री राइटिंग है, जब आप पास्ट के बारे में लिखते हैं, जब आप उसके बाद फिर प्रेजेंट के बारे में लिखते हैं, पास्ट को फिर प्रेजेंट से एक इंटरेक्शन करवाते हैं, तो जो वो उस पूरा का पूरा जो प्रोसेस है, उस पूरे के पूरे इंटरेक्शन की प्रक्रिया को कार्ल पॉपर ऑब्जेक्टिविटी बोलते हैं। और उसी को बोलते हैं कि हिस्टोरियंस जानबूझ के ऑब्जेक्टिविटी प्राप्त करने की कोशिश ना करें, अगर वो इस मेथड को फॉलो करेंगे सो बड़ा इजीली उन्हें ऑब्जेक्टिविटी वो प्राप्त हो जाएगी। Last chapter of the book is The Widening Horizon. He is writing this chapter in the context of growing fears about world catastrophe like the 2012 prediction, and but he argues that history will always continue. There is no such definite end in history. History begins when men started to think about the passage not only in terms of natural processes but series of events in which men are consciously involved and can influence it. History is the struggle of man, and by the help of reason, he tries to understand the environment and try to act upon it. In modern times, man now seeks to understand not only his environment but himself. Past, present, and future are linked to endless chain of history. One can observe this chain in Descartes' idea, who said that man is not only the one who can think, but think about his own thinking and can observe himself in the act of observing. So man becomes both subject and object of thought and observation.
It can be seen clearly in French Revolution, according to E.H. Carr, which showed a belief in human reason and natural law. People knew what they were seeking. They were no longer acting on will of God or some natural providence. In the 18th or 19th century, we had Hegel, who showed how ideas of law of providence or God's will converted into the laws of reason. He talked about the idea of world spirit. Like Adam Smith, he also said that individual, when gratify their own interest, something else is also accomplished automatically which a person is not aware of. So he called it a cunning of reason, just like invisible hand of Adam Smith. But Hegel saw development in history as a development towards freedom. But as after 1815, French Revolution failed with Restoration, and Hegel was too entrenched in the establishment of his day to bring any meaningful idea to his conception. Then Karl Marx came, who started from the idea of world ordered by rational laws of nature. History for him were about three things, namely motion of events according to some objective economic laws, secondly, development of thought through a dialectic process, and corresponding action. को समझने की या फिर अपने बुक में ये बताने की कोशिश करते हैं कि डेकार्ट ये कहते हैं कि इंसान जब हिस्ट्री राइटिंग कर रहा होता है या फिर कुछ भी जब वो करता है तो वो बिकॉज दे कैन थिंक अबाउट देमसेल्फ एंड एज वेल एज वो इसके बारे में भी सोचते हैं कि वो सोच रहे हैं। ठीक है। और इसीलिए जो इंसान है वो सब्जेक्ट एज वेल एज ऑब्जेक्ट दोनों है हिस्ट्री राइटिंग करते समय। मतलब वो तो लिख भी रहा है, साथ साथ वो भी एक पार्ट है उस पूरे इन्वायरमेंट और पूरे के पूरे रेशनल जो प्रोसेस है उसका। सो फिर आगे वो हीगल का एग्जांपल देते हैं। हीगल जैसा कि हमें पता है जिन्होंने डायलेक्टिक मेथड यूज करके पूरी हिस्ट्री राइटिंग की और आइडिया ऑफ स्पिरिट की बात करते हैं। वो बोलते हैं कि स्पिरिट के थ्रू कहीं ना कहीं हिस्ट्री जो है इवॉल्व करती है, हिस्ट्री आगे बढ़ती है। बट हीगल कहीं ना कहीं एक न्यूमना, जिसे कांट न्यूमना बोलते हैं, न्यूमना वाले वर्ल्ड पे जो न्यूमना एक ऐसी ऐसी दुनिया को कहा जाता है जो 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 आप सेंसेस के थ्रू एक्सपीरियंस नहीं कर सकते। न्यूमना मतलब आप गॉड की बात कर सकते हैं न्यूमना में। सो हीगल भी हिस्ट्री राइटिंग में गॉड को ज्यादा इंपॉर्टेंट देते हैं और वो बोलते हैं कि आइडिया आइडिया ऑफ स्पिरिट के थ्रू हिस्ट्री इवॉल्व करती है। बट ये जो एम्पिरिसिस्ट और ये जो रेशनलिस्ट का जो एक डिबेट है, ये और ज्यादा आपको और ज्यादा विजिबल तब दिखाई देता है जब ये कार्ल मार्क्स के थ्रू होके जाता है। कार्ल मार्क्स जो डायलेक्टिक मटेरियलिज्म की बात करते हैं और डायलेक्टिक मटेरियलिज्म में वो इस बात को एक ऑब्जेक्टिव लॉस की भी बात करते हैं, क्योंकि साइंटिफिक जो सोशलिज्म है वो पूरा का पूरा बेस्ड है डायलेक्टिक मटेरियलिज्म जो डिटरमाइन कर रहा है पूरे हिस्ट्री के इवोल्यूशन को, पूरे हिस्ट्री को, प्रोग्रेस को। सो उन उन तक आते आते आप जिसे आप हम पॉलिटिकल साइंस की भाषा में, हिस्ट्री की भाषा में फॉल्स कॉन्शियसनेस, जैसे न्यूमना के बारे में। तो यहाँ पे यशकार एग्जांपल देते हुए कहते हैं, फ्रेंच रिवॉल्यूशन का एग्जांपल देते हुए कहते हैं कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन के समय में जो लोग वो रिवॉल्यूशन कर रहे होते हैं उनमें ये इतनी चेतना आ जाती है कि वो क्यों कर रहे हैं और किस लिए कर रहे हैं, क्योंकि अब वो गॉड फियरिंग नहीं रहे। अब उन्हें गॉड से इतना ज्यादा मतलब नहीं था जब भी फ्रेंच रिवॉल्यूशन हो रहा था। जैसा कि आपको पता होगा जितने भी रिवॉल्यूशन रेनेसा काल में या फिर इनलाइटमेंट से पहले हुए वो सब रीजनिंग बेस्ड रिवॉल्यूशन थे, कहीं ना कहीं लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, इन सब चीजों पे, और एंटी चर्च थे। जहां पे हम अब गॉड से हटके सोचना स्टार्ट किए। तो हिस्ट्री राइटिंग में यशकार फ्रेंच रिवॉल्यूशन का एग्जांपल देते हुए बोलते हैं कि उस समय तक इतने कॉन्शियस लोग हो गए थे, जो मार्क्स भी बोलता है कि वो कॉन्शियसनेस आएगी एंड दैट इज हाउ हिस्ट्री राइटिंग एक अच्छे वे में होगा और हिस्ट्री हिस्ट्री में उन लोगों को स्थान मिलेगा जो हमेशा से एक मार्जिनलाइज सेक्शन रहा है। तो टोटल ये इस डिबेट का टोटल
So Marx basically offered a synthesis of objective laws and conscious actions to translate them in practice, or what is also called determinism. He talked about false consciousness of which men are not aware of. But he also calls for a striking revolutionary action in which proletariat would dissolve the false consciousness of capitalist society. But for him, the failure of 1848 revolution was a setback. So role of reason in this period was no longer to understand just objective laws like the preceding philosophers think, but to reshape society and individual by conscious action. Similarly, when Marx defined ideology, he defined it in negative. So E.H. Carr called this age the age of self-consciousness. The people become self-consciousness. People become self-conscious of what they were doing. So 20th century also passed through this revolutionary change of reason. Till the 1930s, for example, there was a firm belief in objective laws of nature that govern the economic man. But when Great Depression occurred in 1930, people started talking about the end of economic man, and there was a transition to managed economy or state-led economy from laissez-faire one. And from movement कि जो 20th सेंचुरी है, यहाँ पे इंसान 19th सेंचुरी के एंड में एंड 20th सेंचुरी के बिगिनिंग में इंसान कहीं ज्यादा रेशनल और कहीं ज्यादा सेल्फ कॉन्शियस है हिस्ट्री राइटिंग करते समय। और उसे ये पता है वो क्यों कर रहा है और किस लिए कर रहा है, उसे वो सारी चीजें पता है और वो फॉल्स कॉन्शियसनेस के ट्रैप में नहीं आने वाला। और अगर आता भी है तो उस तरह से हिस्ट्री राइटिंग हो चुकी है, जैसे मार्क्स ने फॉल्स कॉन्शियसनेस का पूरा आइडिया दिया कि किस तरह से कैपिटलिज्म थ्रू फॉल्स कॉन्शियसनेस अपनी लेजिटिमेसी को बचाए रखता है। सो एटलीस्ट वो अवेयरनेस लोगों में आ गई है। man and society have changed by conscious human effort. Now everyone talks about how they can contribute through their actions to bring change in society. Now reason helps in transforming and improve the management of a social, economic and political affair. Most important consequence, according to E.H. Carr, of industrial revolution has been the increase in the number of those individualization mean end of society. Today, there is increasing individualization, but it doesn't reflect, as E.H. Carr says, end of social pressures. It is one of the paradox of modern society. For example, education through which individual capacities are promoted are also a powerful instruments in the hand of influential group to promote social uniformity. So both individual and society goes hand in hand. Coercive measures are always applied by some groups in every society and also by ruling groups to organize and control mass opinion. So it seems worse because in this particular region there is an abuse of reason. Modern history begins when more and more people become aware of their respective groups as historical entities having a past and future and completely enter fully into history. He argues that it is only today that the whole world has fully entered into history and become the concern of not only the anthropologists or colonial record keepers, but also of historians. And to see history as just the history of English speaking world or as a center of universal history is wrong. The world will keep moving irrespective of what some conservative historian will say that we are not moving or we are not going. Carr said that the progress in society has not come through some piecemeal efforts but by the fundamental challenges posed in the name of reason to the existing way of doing things. World will keep moving. तो थोड़ा सा एक पोस्ट मॉडर्निस्ट एंगल देखने को मिलता है जहाँ पे ये बोलते हैं कि हिस्ट्री अब केवल कॉलोनियल कीपर्स जो कॉलोनियल हिस्ट्री लिख रहे हैं या फिर जो जस्ट हिस्ट्री फॉर द सेक ऑफ हिस्ट्री राइटिंग लिख रहे हैं, उनका कोई पर्पज नहीं है। सो ये इसकार उनके लिए भी ये बात बोलते हैं कि अब हिस्ट्री जो मॉडर्न समय है, हिस्ट्री में आज एक ऐसा समय है जहाँ पे हर कोई कॉन्शियस है। एंड बिकॉज हर कोई कॉन्शियस है, इसीलिए हिस्ट्री राइटिंग का स्कोप आज के समय में कहीं ज्यादा है रेदर देन व्हाट इज हिस्ट्री को रिव्यू किया था। और ये रहा दूसरा पार्ट जहाँ पे हमने जो बचे हुए 3 चैप्टर्स थे उस पे हमने पढ़ाई की और देन जो जो भी हम समझ पा रहे थे हमने उसे रिव्यू किया। सो अब सवाल ये उठता है कि ये किन किन लोगों के लिए बुक इम्पोर्टेंट है और किसे पढ़ना चाहिए, क्योंकि कई बार जब हमें ये नहीं पता होता है कि हम इस बुक को पढ़ क्यों रहे हैं और रीजन क्या है इसको पढ़ने का और किस तरह से हमें ये हेल्प कर सकते हैं। तो पहली चीज मैं ये कहूंगा कि
ये उन सारे सोशल साइंस के स्टूडेंट्स को पढ़ना चाहिए जिनको हिस्ट्री में थोड़ा सा भी इंटरेस्ट है, जो हिस्ट्री समझना चाहते हैं, जो पॉलिटिक्स समझना चाहते हैं, जो सोशियोलॉजी समझना चाहते हैं, जो एंथ्रोपोलॉजिकल तरीका है हिस्ट्री लिखने का। जो एंथ्रोपोलॉजी के स्टूडेंट हैं उन्हें ये बुक पढ़नी चाहिए कि इंटरप्रिटेशन कैसे किया जाए, और एटलीस्ट एक व्यू को समझने के लिए, ईएसआर के एक अंडरस्टैंडिंग को समझने के लिए इस किताब को पढ़ा जाना चाहिए। ये बुक इसलिए इम्पोर्टेंट भी है कि कई बार हम हिस्ट्री पढ़ते जरूर हैं, बट हमें ये नहीं समझ में आता है ऐतिहासिक चेतना होती क्या है, हिस्टोरिकल कॉन्शियसनेस होती क्या है। और फिर हम एक छोटे छोटे इवेंट्स को इंडियन कॉन्टेक्स्ट में ले लें या फिर किसी भी देश के कॉन्टेक्स्ट में, हम छोटे छोटे इवेंट्स पे, छोटी छोटी पर्सनैलिटीज के ऊपर फाइट करना स्टार्ट करते हैं। इसीलिए ये कार ऐसे कई सारे एग्जाम्पल इस बुक की स्टार्टिंग, जो पहला जो पार्ट हमने किया, पार्ट 1, उसमें हमने यशकार एक जगह पे ये बोलते हैं कि हमें व्यक्ति सेंट्रिक इतिहास नहीं, हमें अ, व्यक्ति जिन इन्वायरमेंट का प्रोडक्ट है, जो इन्वायरमेंट उसे सेव कर रहा है, उससे रिलेटेड हमें अध्ययन करना चाहिए ताकि हम समझ पाए उसकी सोच कैसे इवॉल्व कर रही है। सो इसलिए ये बुक उन सारे लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है जो इतिहास को जानना, समझना, हिस्टोरिकल कॉन्शियसनेस क्या होती है, और अनकॉन्शियस से कॉन्शियस हिस्ट्री तक कैसे पहुंचा जाए, क्या तरीका हो सकता है उसका, हिस्टोरिकल फैक्ट्स क्या होते हैं, और नॉर्मल फैक्ट से कैसे हिस्टोरिकल फैक्ट डिफरेंट होता है। ठीक है, इन सब सारी चीजों को समझने के लिए सब्जेक्टिविटी ऑब्जेक्टिविटी का डिबेट क्या है हिस्ट्री में, और फिर यचकार का इम्फेसाइज किस तरह की हिस्ट्री पे है, सब्जेक्टिव हिस्ट्री पे है या फिर ऑब्जेक्टिव हिस्ट्री पे है, इन सब सारी चीजों को समझने के लिए यचकार की किताब सबसे बेस्ट है। और ये एक मॉडर्न, मतलब जैसे अगर अगर आप एक रिसर्च स्कॉलर हैं, एक स्टूडेंट है, तो आपको हिस्ट्री राइटिंग का जो हिस्टोरिकल इवोल्यूशन है, उसमें सारे के सारे हिस्टोरियंस आपको मिलेंगे, कार्ल मार्क्स से लेके हेगल, डेकार्ट, ये सारे के सारे मिलेंगे। और फिर आपको यचकार तक ये पूरा का पूरा एक एक विस्तृत वर्णन आपको मिलता है हिस्ट्री राइटिंग्स का, रांके से लेके कोलिंगवुड तक, सबके सब इसमें है। इसलिए आप ये किताब जरूर पढ़ें जो हिस्ट्री के स्टूडेंट्स। तो यचकार, जैसा कि मेरे मित्र ने बताया, यचकार कई जगह पे हिस्टोरिकल फैक्ट नॉर्मल फैक्ट में डिफरेंट तो करते हैं, ऑब्जेक्टिविटी की बात तो करते हैं, बट जिस तरह से वो खुद एक्सप्लेन कर रहे हैं, तो उसमें ये एक गारंटी ये नजर नहीं आती कि जो चीज वो एक्सप्लेन कर रहे हैं कि वो पैरामीटर एक एग्जैक्ट तरीका है हिस्ट्री को देखने का, हिस्ट्री राइटिंग्स का। सो वो प्रॉब्लम, क्योंकि जब हिस्ट्री इज ऑल अबाउट चूजिंग अ फैक्ट एंड इट डिपेंड्स ऑन हिस्टोरियंस हाउ दे आर इंटरप्रिटेटिंग दोज फैक्ट्स। सो फिर यचकार जो कह रहे हैं वो फैक्ट कितना सही है, या फिर उसी तरह की हिस्ट्री राइटिंग हो ताकि हमें अच्छे एविडेंसेस प्राप्त हो, इसकी क्या गारंटी है। सो जो हमें लगा एक प्रॉब्लम ये है, और क्योंकि वो वही दिक्कत है कि आप पूरी हिस्ट्री को देख रहे हैं और लास्ट में वो सेम मिस्टेक आप कमिट कर रहे हैं, और आप पे वो सेम क्वेश्चन आपके ऊपर भी आ जाता है कि फिर हम आप पे ही विश्वास क्यों करें इफ देयर इज नो ऑब्जेक्टिविटी इन हिस्ट्री। फिर आपकी भी जो राइटिंग है वो कहीं ना कहीं वो पर्सनल बायस हो सकती है, राइट। सो एक प्रॉब्लम ये नजर आई, और एक से ज्यादा आप इस तरह से समझ लें, मे बी ये कहीं ना कहीं हिस्ट्री राइटिंग का जो पोस्ट मॉडर्निस्ट व्यू है, हमें यचकार की इस पूरी बुक में कहीं ना कहीं देखने को मिलता है, क्योंकि कई जगह पर वो इंटरप्रिटेशन पे रिलाई करते हैं, रिलेटिव इंटरप्रिटेशंस पे रिलाई करते हैं, सब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशंस पे रिलाई करते हैं, और वो लोकल नॉलेज और लोकल रियलिटी की भी बात करते हैं। और वो ऑलमोस्ट कई तरह के हिस्ट्री राइटिंग्स की अपने जो लास्ट चैप्टर है उसमें बात कर रहे होते हैं। इसीलिए इसमें काइंड ऑफ पोस्ट मॉडर्निस्ट हिंट मिल जाता है यशकार की इस बुक में। और आपको पता ही होगा, पोस्ट मॉडर्निस्ट किसी भी एक एक वे ऑफ हिस्ट्री को नहीं मानते और उसको अल्टीमेट ट्रूथ नहीं मानते, वो किसी भी ऑब्जेक्टिव ट्रूथ को नहीं मानते। सो कई बार जो कोलिंगवुड जैसे थिंकर हैं वो इस बात को, रांगे और कोलिंगवुड, खासकर कोलिंगवुड, जो ऑब्जेक्टिव ट्रूथ को एक इम्पोर्टेंट पार्ट मानते हैं हिस्ट्री का, वो बोलते हैं हिस्ट्री राइटिंग जब भी हो तो फैक्ट के बेसिस पे हो, और फैक्ट के बेसिस पे हो ही, और साथ साथ एक ऑब्जेक्टिव ट्रूथ प्रोवाइड करने की कोशिश करें। तो जैसे जिस मोमेंट उनमें एक समस्या है जो यजकार क्रिटिसाइज करते हैं, बट यजकार में जो समस्या है वो कोलिंगवुड जो बोलते हैं वो समस्या यजकार में। कोलिंगवुड जब ये बात कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं हमें जितना हो सके मिनिमम हमें बायसनेस से बचना चाहिए और फैक्ट को इंटरप्रेटेट करना चाहिए। बट जब यजकार जब हिस्टोरियंस और फैक्ट के रिलेशन की बात कर रहे होते हैं, तो हिस्टोरियंस के इन्वायरमेंट को, हिस्टोरियंस को सेव करने वाले चीजों को एनालाइज करने की बात करते हैं, फिर फैक्ट। सो इन द प्रोसेस ऑफ एनालाइजिंग हिस्टोरियंस बैकग्राउंड, सो कई बार जब आप एनालाइज कर रहे होंगे तो कहीं ना कहीं आपके खुद का, जैसा डेविड ह्यूम और
जो रेशनिस्ट थिंकर वो मानते हैं कि आप आपके दिमाग में पहले से ही कुछ होता है, और जैसे ही आप उस चीज को जनरलाइज करते हैं, कोई भी चीज जैसे ही जनरलाइज करते हैं तो आपका जो अजम्पशन है उसमें काम करता है। तो दूसरी प्रॉब्लम ये यस कार में दिखती है, क्योंकि जब आप हिस्टोरियंस के बैकग्राउंड को देखेंगे, मान लीजिए ऑन द बेसिस ऑफ एविडेंसेस, तो क्या गारंटी है कि वो प्रॉब्लम आप में ना हो? क्या गारंटी है कि आप सारे एविडेंसेस को कलेक्ट करके आप एनालाइज करें, जैसे एक हिस्टोरिकल फिगर्स के पर्सनैलिटी को जिसे बचने की बात कर रहे हैं। सो वो प्रॉब्लम ही इस कार के दूसरे दूसरी जो क्रिटिक है वो इस तरह का क्रिटिक एटलीस्ट एट माई लेवल मुझे ऐसा लगता है कि हो सकता है, क्योंकि ये आसान काम नहीं है किसी के किसी इवेंट्स में कंप्लीटली एविडेंसेस आप कलेक्ट करें और उसको एनालाइज करें, क्योंकि कोलिंगवुड ये भी बात बोलते हैं कि इतने सारे एविडेंसेस है, और रांके भी बोलते हैं इतने सारे एविडेंसेस हैं कि यशकार एविडेंसेस की भी एक लिमिट हो जाएगी। ठीक है, तो आपकी आपकी जैसे आज आज जो एविडेंस आपने इकट्ठा किया, कल को वो कुछ और एविडेंस आ गए और यशकार मान लीजिए ना हो, राइट? यशकार ना हो तो और भी एविडेंस फ्यूचर में उसी एक इवेंट्स पे खोजे जा सकते हैं। सो ये प्रॉब्लम यशकार में दिखती है, और यही इसी का एक प्रॉपर पैरामीटर यशकार की राइटिंग्स में आपको नहीं मिलता है कि ये दो सवाल है उसको ये एड्रेस नहीं करती है किताब कहीं ना कहीं, एटलीस्ट एट माई लेवल मुझे ऐसा लगा। So thank you so much, इस guys. Thanks for watching our video. We really hope that you like our work. We are still in the process of learning, and we hope that you will, and we will be able to work on it. So और एक और चीज, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तभी लाइक करिएगा, अगर नहीं पसंद आए तो नो, वट एवर यू वॉन्ट टू डू यू कैन डू। मतलब जब तक पसंद ना आए कोई चीज ना करें, अगर पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कुछ और लोगों के पास भेजें जिससे उनमें एक कॉन्शियसनेस आए, वो लिबरेट हो अनकॉन्शियस से कॉन्शियसनेस की तरफ जाए, और उनमें एक मुक्ति इमेंसिपेशन का एक भाव है। सो ये काम जरूर करें। बाकी थैंक यू फॉर वॉचिंग अस।